Hey guys, welcome to my channel Learn and Crack. My name is Rahul Debroy, and this is the second video of the series that I've started, the Sure Shot Questions. Uh, if you haven't watched the first video, I'll encourage you guys to even watch that video. There are some certain questions, certain words which you might find new, and you might even encounter those things even in your examination. So I'll highly recommend you to even watch the video one, I mean the set one of this series. And as we'll proceed further, I'll keep on uploading new videos, new set of questions. Anyway, in this video, we are going to cover questions from cloze test, replaceable words, fillers, and spotting errors. These are some of the topics which are very frequently asked in most of the competitive exams. Okay, so without wasting much time, let's get started. Yeah, the first question. Okay, as you can already see, this is a cloze test question where you get an entire paragraph, you get the entire thing written with blanks here and there. You can see blanks here and there, and for that particular blank, you will get appropriate options. I mean, you get 4 or 5 options to select one out of them and to see if any one of them fills this blank and make the statement or the sentence grammatically and contextually correct, right? So let's begin. When things go as dash, we feel comfortable, but when life throws a curveball, it creates anxiety and stress. So when things go as dash, so let's see the options. As thing when things go as planned, हो सकता है. When things go as normal, okay. When things go as berserk, abhi berserk ka mean, it means, if you do not know the meaning, it means something like to get out of control because of anger. Okay, to get out of control. Let me write it for you. Getting out of control with anger. That means this is berserk. Okay. When things go as berserk, we feel comfortable. Definitely ये नहीं होगा. ठीक है. When things go as good होने से मुझे इसके बाद और एक as चाहिए. As good as I wanted या ऐसा कुछ होता है ना, तो as good होने से इसके बाद मुझे और एक as चाहिए to make the sentence correct. ये भी नहीं होगा. When things go as it is previously कुछ mention होना पड़ेगा, इसके साथ आप compare करके बोलोगे as it is, हाँ ये भी नहीं होगा. तो इन दोनों में से कुछ है. When things go as planned, when things go as normal से better sounding कौन सा है? As planned. So the correct answer would have been would be that when things go as planned, we feel comfortable. चलो नंबर ए तो हो गया. नंबर बी देखते हैं. But when life throws curveball, it creates anxiety and stress. चलो इतना तक ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या? When things go as planned. नंबर अच्छा ये लिखने से नेक्स्ट पेज में फिर से नहीं रहेगा, छोड़ दो. तो यहाँ पे सोच के रखो, यहाँ पे planned है. But when life throws a curveball, it creates anxiety and stress. The current COVID-19 pandemic has dashed the carpet from our feet. Acha, there is a phrase, I do not know if you know it. There's a phrase called to pull the carpet from under the feet or to pull the rug from under the feet. ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ. Pull the rug, which means carpet, from under the feet. It means to withdraw support. ठीक है, support को withdraw कर देना. It means to withdraw support. It means to withdraw support. तो यहाँ पे क्या है? The current COVID-19 pandemic has dashed the carpet from our feet. तो has placed the carpet, definitely नहीं होगा. COVID-19 ने carpet तो place नहीं किया, at least. Has pulled, हाँ, according to this phrase, pulled होना चाहिए. Next देखते हैं. Snatch the carpet. अभी snatched is a very violent term. यहाँ पे snatch the carpet ये एक तो phrase में नहीं होता है. ऊपर से ये it's a very
वायलेंट टर्म, यहाँ पे ये फिट नहीं बैठ रहा है. नेक्स्ट, पुश द टर्म, पुश द कारपेट, ये भी नहीं होगा. पुश कैसे कर दिया कारपेट. शोव द कारपेट, शोव इज एंड पुश आर सिनोनिमस टर्म्स. इट मीन्स टू पुश रफली. ठीक है, शोव मीन्स टू पुश रफली, तो ये भी नहीं होगा. तो एक ही बचा है ऑप्शन, कौन सा? पुल्ड, हैज पुल्ड द कारपेट फ्रॉम आवर फीट. नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन सी. It has increased dash over the economy, employment, finances, relationships, and of course physical and mental health. Yet human beings, yet as human beings we crave security. चलो, यहाँ पे क्या है? It has increased dash over the economy, employment, finances, relationships, and of course physical and mental health. Yet as human being we crave security. इतना कुछ होने के बाद भी हम ह्यूमन बीइंग क्या, हम लोग क्या क्रेव करते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं लाइफ में सिक्योरिटी चाहते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? ऐसे वी क्रेव सिक्योरिटी. यहाँ पे देखो, एंड कोविड ने क्या किया? ठीक उसका उल्टा किया, ठीक इसका ऑपोजिट किया. तो अभी ऑपोजिट उसका देखना होगा. सिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी डेफिनेटली होना चाहिए. चलो, इससे बेटर अगर कुछ मिलता है तो देख लेते. इसके बाद क्या? टर्मोइल. टर्मोइल का मतलब क्या है? टू क्रिएट डिस्टर्बेंसेस. डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन सिक्योरिटी का ऑपोजिट नहीं है, ये भी नहीं होगा. ग्रिप डेफिनेटली नहीं होगा. ग्रिप करना. मोमेंटम, टू गेन मोमेंटम, मोमेंटम गेन करना. जैसे कि अगर पकड़ लो क्रिकेट के हिसाब से अगर मैं बोलूं, अगर 10 बॉल खेलने के बाद एक प्लेयर मोमेंटम गेन करता है, 10 बॉल खेलने के बाद अगर वो 12 रन करता है, तो अगर वो मोमेंटम गेन कर चुका होगा लास्ट 2-3 बॉल में, तो अगले 10 बॉल में हो सकता है वो 25 रन कर दे. तो वो मोमेंटम गेन करना, ये मोमेंटम तो यहाँ पे डेफिनेटली नहीं होगा, ऑपोजिट ऑफ सिक्योरिटी. एक्सपोजर मिलना, ये भी नहीं होगा. तो एक ही यहाँ पे बचा है, कौन सा? अनसर्टेनिटी, ऑपोजिट ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि it has increased uncertainty over the economy, employment and finances. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बैठ रहा है? अनसर्टेनिटी. नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन डी. चलो, yet as human beings we crave security. Fear and difference make you powerless and drain you emotionally. Okay, many people can dash some level of uncertainty in life. Some enjoy taking risks, other get overwhelmed by the dash of life. So many people, यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी. तो many people can dash some level of uncertainty, can forecast मतलब predict करना. Okay, expect, so definitely can expect some level of uncertainty. Some enjoy taking risks. अगर expect ही करते हैं तो यहाँ इसके साथ वो सेंस नहीं बैठता है, तो नंबर बी तो यहीं से कट गया. Many people can, हाँ, tolerate हो सकता है. Many people can tolerate some level of uncertainty. उसके पास सेविंग्स है या उसके पास वैसा इनकम सोर्स बनाया गया है कि वो अपना फिनेंसेस, रिलेशनशिप्स या मेंटल या फिजिकल हेल्थ, वो सबको थोड़ा अनसर्टेनिटी अगर हो गया लाइफ में, वो टॉलरेट कर सकते हैं. सम एंजॉय टेकिंग रिस्क, अदर गेट्स ओवरवेल्म्ड बाय, वो आगे चल देख लेंगे. तो यहाँ पे टॉलरेट हो सकता है. टेस्टिफाई डेफिनेटली नहीं होगा, एंड डिस्क्राइब ये सब कुछ गलत है. यहाँ पे कौन सा बैठना चाहिए था? टॉलरेट. ठीक है, तो मेनी पीपल कैन टॉलरेट सम लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इन लाइफ. some enjoy taking risks, other gets overwhelmed by, चलो देखते हैं क्या ऑप्शन है. ऑप्शन 5, others gets overwhelmed by dash of life. अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है. हार्मोनी, पीस एंड हार्मोनी ऑफ लाइफ के लिए उन लोग क्यों डर जाएंगे? डेफिनेटली नहीं होगा हार्मोनी. नेक्स्ट क्या है? पेसिफिकेशन मीन्स एन एक्ट ऑफ पेसिफाइंग, ठंडा करना. पेसिफाई का मतलब क्या है? लाइक ठंडा करना, चुप कराना. ठीक है, दैट्स शांत करना, दैट्स पेसिफाइंग. पेसिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पेसिफाइंग. शांत कराना तो डेफिनेटली नहीं होगा, पेसिफिकेशन यहाँ पे नहीं बैठ रहा है. इगैलिटेरियनिज्म, इट्स एक्सीलेंट टर्म, हाँ, जान के रखो. ऑल्दो यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, फिर भी टर्म का मतलब जान के रखो. इगैलिटेरियनिज्म इज वन हु treats everybody equally irrespective of color, creed, caste, sex, religion, etc. Like वो chauvinist नहीं है या jingoist नहीं है, जो हम लोग बोलते हैं ना, partial towards women, partial towards men, all those kind of people. तो वो वैसा कैरेक्टर नहीं रखता है. He is a personality. Egalitarianism is a belief where everybody is treated equally. The one who believes in egalitarianism is an egalitarian. ठीक है, वो जान के रखो. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म.
नेक्स्ट क्या ऑप्शन था, ऑप्शन ई ना, अदर गेट्स ओवरवेल्म्ड बाय द अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अनप्रिडिक्टेबिलिटी के ऊपर ही ये सेंटेंस बन रहा है, तो ऑफ कोर्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ही अच्छा सेंस दे रहा है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव नहीं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे दो तीन वर्ड अच्छा था, हार्मोनी, पीस एंड हार्मोनी आपको पता है, स्पेसिफिकेशन दैट इज द एक्ट ऑफ स्पेसिफाइंग, द शांत करना, ठीक है, इगैलिटेरियनिज्म इज टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी का तो मतलब पता ही है, आज ये तो कल वो, कोई जिसका कोई ठीक काना नहीं, हम लोग जिसको बोलते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना, जैसे ऋषभ पंत पहले क्रिकेट खेलने आया था, वो अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर था, कभी लाइक 140 रन मार देता था, अगले मैच में देखो 0 में आउट हो जाता था। तो ये अनप्रिडिक्टेबल, जो श्योर नहीं है कि उसको आप भरोसा कर सको, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई मीन नेक्स्ट ऑप्शन एफ, अच्छा, no matter how bad the situation may be, there are steps you can take to better dash yourself to face the unknown with courage. So no matter how bad the situation may be, there are steps you can take to better dash yourself, better surround yourself, okay, better calm, definitely नहीं होगा, begin definitely नहीं, better turn yourself, better सराउंड एंड इक्विप में से एक, बेटर सराउंड योरसेल्फ विद पीपल, ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बेटर इक्विप योरसेल्फ, आप खुद के अपने आप में वैसा अपने आप को वैसा इक्विप कर लो कि आप उसको फेस कर सको अच्छे से विद करेज, ठीक है, आपके पास वो क्षमता आ जाए, यू इक्विप योरसेल्फ विद दैट, सो दैट यू कैन फेस द अननोन विद करेज। तो यहाँ पे ऑप्शन ई डेफिनेटली अच्छे से बैठ रहा है। तो ऑप्शन एफ, आई मीन एफ भी हो गया, तो एफ का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई, इक्विप। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट ये है पेन एंड प्लेजर, जॉय एंड सॉरो, ऑर्डर एंड अच्छा, ऑनर एंड डिसऑनर are and dash part of life, are and immense, immense तो immense pressure, बहुत ज्यादा जिसको हम लोग बोलते हैं, that's immense, ज्यादा को मीन करते हैं immense। artificial part of life डेफिनेटली नहीं होगा, integral part of life हो सकता है। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं, प्लेजेंट, डेफिनेटली नॉट, सैक्रेड मतलब होली, ये भी नहीं होगा। क्या बचा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज देयर फंडामेंटली, उसको उसके साथ होना ही होगा। दैट्स, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सुख और दुख आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। अगर मतलब खुशी है तो दुख भी होगा, अगर दुख है तो खुशी भी होगा। दिस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, दिस आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली दिस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, ऑप्शन मतलब जी का आंसर, इंटीग्रल, ऑप्शन सी, बिकॉज प्लेजर, पेन, जॉय, सॉरो, ऑनर, डिसऑनर आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट, आई थिंक द लास्ट वन, सो थिंग्स विल चेंज एंड फॉर द बेटर डैश द वर्ल्ड इज कंस्टेंटली चेंजिंग, things will change and for the better, full stop, dash the world is constantly changing and this change is unpredictable, dash the world is, यहाँ पे full stop हो गया था, इसके बाद dash the world is, though the world, since the world is constantly changing and it's this change is unpredictable, no, since होने से इसका reason आता, next ये भी नहीं है, moreover the world is changing and this change is unpredictable, definitely हो सकता है, hence इसके साथ supporting evidences नहीं है, hence होने के लिए nevertheless नहीं, तो एक ही अच्छे से बैठ रहा है, ऑप्शन सी, moreover the world is constantly changing and this change is unpredictable। देखो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ पे टेंशन लेने के लिए एक ही चीज था कि बहुत स्टूडेंट्स बहुत आलसी होते हैं, लाइक देयर आर स्टूडेंट्स, मैंने बहुत देखा है ऐसा कि उनको बड़ा एक पैराग्राफ मिल जाए या पैसेज मिल जाए तो बहुत आलसी करते हैं, पढ़ने के लिए बहुत आलसी करते हैं। देखो, वर्ड्स या क्वेश्चन उतना टफ नहीं था, आप अगर थोड़ा टाइम लेके खुद का मन को शांत करके आप उसको अगर पढ़ो, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। पॉइंट बिंग अपने आप अपना कंपोजर मेंटेन करना एंड कॉन्फिडेंस रखना कि मैं पूरा पढ़ूंगा एंड मैं पूरा कर पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखो 8, आई थिंक 7 और 8 एज तक है, तो 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, कितना टाइम लगा, 5 मिनट 10 मिनट। अगर मैं ऐसे ही करता तो 2 से 3 मिनट लगता मैक्स टू मैक्स, डिस्कशन पार्ट के लिए बढ़ जाता है तो या 2 से 3 मिनट लगता मैक्स टू मैक्स। तो देखो, ऐसे बड़े क्वेश्चंस ऐसे ही छोड़ मत दो, देखो कि एक बार पढ़ के देखो, हो सकता है बहुत ईजी है, टाइम टेकिंग नहीं है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपका अगर रीडिंग स्पीड स्लो है तो प्लीज वर्क ऑन दैट। आप एक ही चीज कर सकते हो, पढ़ो, जितना पढ़ोगे
जितना कुछ भी फाइंड आउट एनीथिंग, मैगजीन्स, बुक्स, नोवेल्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, एनीथिंग, गेट एनीथिंग, बट पढ़ो। जितना पढ़ोगे उतना रीडिंग स्पीड डेवलप होगा। एंड अनदर थिंग, ऑल्दो ये इसका पार्ट नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे बोल देना चाहता हूँ, प्लीज मेक श्योर व्हेन यू रीड आपका लिप्स ने, वो हम लोग टच करते हैं ना, लिप्स को वाइब्रेट करते हैं व्हाइल विल स्पीक, व्हाइल जैसे हम लोग बात करते हैं उस समय, किसी किसी का आदत होता है पढ़ने के टाइम में करके पढ़ते हैं। प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज उसमें क्या होगा, वो बचपन में सही था क्योंकि पढ़ के सुनना होता था, वो सब बचपन के लिए सही था। अभी के लिए यू आर कंज्यूमिंग मोर टाइम, because your mind will automatically read faster than how your lips will vibrate. आप अगर उसको वाइब्रेट करने के लिए जितना टाइम दोगे, उससे फास्ट अगर आप मन में पढ़ के निकल जाओगे, आप बहुत जल्दी उसको पढ़ के समझ सकते हो। तो उसका हैबिट करने का कोशिश करो एज अर्ली एज पॉसिबल, कि मन में ही पढ़ने का कोशिश ट्राई करो, आई मीन कोशिश करो, लिप्स एंड माउथ शट, चुप, एंड मन में पढ़ो, तो क्योंकि आपका माइंड डेफिनेटली उससे फास्टर पढ़ पाएगा, जिससे जितना फास्ट आपका लिप्स वाइब्रेट करेगा। ठीक है, इवन ट्राई दैट। एनीवे, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, देखो पढ़ के देखते हैं यहाँ पे क्या है, नया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड, ओके, which of the following words must replace each other so that the sentence becomes contextually correct and meaningful? If the sentence is correct as it is, choose option E. तो किन दो वर्ड को अगर आप रिप्लेस करो, या अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, किन किन ऑप्शंस को अगर आप रिप्लेस करो, तो ये जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली या कंटेक्चुअली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट बैठेगा। हमें क्लियर करना क्या है आपको, जैसे कि 4 वर्ड यहाँ पे हाईलाइटेड है, अगर 4 वर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, उन वर्ड्स को आप इंटरचेंज करके देखो, इंटरचेंज करने के बाद अगर सेंटेंस कंटेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट बैठता है तो वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सेंटेंस। No other profession has such a multiple range of knowledge and skills to make broad contributions to society. Okay, ऑप्शन ए को देखते, दैट मीन्स बी की जगह ए की जगह बी, चलो इंटरचेंज करके देखते। नो अदर मल्टीपल हैज, दो अदर मल्टीपल हैज कैसे होगा, तो पहले ही कट गया, मल्टीपल हैज को कोई सेंस नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन बी, नो अदर, अच्छा इसमें क्या करना है, बी को सी एंड सी को बी, अच्छा ठीक है। नो अदर प्रोफेशन हैज सच अ ब्रॉड रेंज, हाँ हो सकता है, ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स टू मेक मल्टीपल कंट्रीब्यूशंस, डेफिनेटली हो सकता है। देखो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, बी को सी एंड सी को बी करके, नो अदर प्रोफेशन हैज सच ए ब्रॉड रेंज ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स टू मेक मल्टीपल कंट्रीब्यूशंस टू सोसाइटी। चलो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, बहुत मीनिंगफुल साउंड कर रहा है। दूसरे भी देख लेते। ए बी, फिर से ए बी, ये तो पहले ही कट गया था, डेफिनेटली नहीं होगा। बी एंड डी को इंटरचेंज करके दे सकते। नो द प्रोफेशन हैज सच ए मल्टीपल रेंज ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स टू मेक सोसाइटी कंट्रीब्यूशंस टू ब्रॉड, डेफिनेटली नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है, कौन सा, ऑप्शन बी। दैट मीन्स अगर मैं सी को बी में लाऊं एंड बी को सी में लाऊं तो ये सेंटेंस कंटेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इजी था, ज्यादा टफ नहीं था, जस्ट पढ़ के समझ के आंसर करना, उतना ही एफर्ट चाहिए। एनीवे, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The movie has a thought and complex provoking, complex provoking, यहीं पे गड़बड़ हो गया, that means कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। Portrayal of women struggling with their inner selves. The movie has a thought and complex provoking portrayal of women struggling with their inner selves. तो इसमें क्या है, हमको ऑप्शन ए में क्या है, ए को बी एंड बी को ए, चलो देखते हैं। The movie has a complex and thought provoking, हाँ thought provoking तो जरूर होगा। The movie has a complex and thought provoking portrayal of women, definitely हो सकता है, हाँ। Anyway, let's check the other options. The movie has B and C. The movie has a thought and women provoking. हाँ, women को ही अगर provoke कर दोगे तो कैसे होगा, definitely नहीं होगा। इसमें भी B C है, B C ऊपर से ही कट गया, ये भी नहीं होगा। B and D देख लेते। इनर सेल्फ प्रोवोकिंग, अपना इनर सेल्फ को अगर प्रोवोक कर देगा तो कैसे होगा भाई, तो डेफिनेटली एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, ऑप्शन ए, द मूवी हैज कॉम्प्लेक्स एंड थॉट प्रोवोकिंग। देखो इजी था, बहुत इजी था, जस्ट पढ़ के समझ के आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, फिलर्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अपने पास एक डैश है, उस पर हमको इन 4-5 वर्ड्स में से कोई भी एक सिलेक्ट करके वहां पे बैठाना है टू मेक द सेंटेंस अप्रोप्रिएट। चलो देखते हैं।
Question number 11, right? Moving to the new job was I dash for every employee. Okay, I clearing, I freeing, I saving, I opening. अच्छा, I'll give you 10 seconds time. जल्दी से सोचो इसका आंसर. Moving to a new job was dash for every employee. I clearing, I freeing, I saving, I opening. I hope you got the answer. That's a very easy one actually. Was an eye of course eye opening. क्यों eye opening का मतलब क्या है? To get enlightened, enlightening. ठीक है, eye opening का मतलब getting enlightened. तो the moving to a new job was eye opening. इसको बहुत कुछ सीखने को मिला. ठीक है, it was eye opening. तो इसमें एक ही ऑप्शन बैठ रहा है, कौन सा? Opening. eye opening का मतलब getting enlightened. ठीक है, enlightening जिसको हम लोग बोलते हैं. That was easy. Chalo, let's move to the next question. With the blood test, the doctor was able to dash the blood required. ठीक है, then the doctor was able to term, of course not, confirm हो सकता है, firm नहीं, confer means to grant the blood required. With the blood test, the doctor was able to grant the blood required. Blood test से कैसे grant कर सकेगा, कितना? Confirm, हाँ, ये अभी क्या है उसको confirm कर सकता है डॉक्टर. ठीक है, और तो मैं लिख के देता हूँ, बाकी तो सब इजी था. कॉन्फर हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो, तो इसका मीनिंग ग्रांट. ठीक है, तो एक ही यहाँ पे बैठ रहे. विद द ब्लड टेस्ट द डॉक्टर वाज एबल टू कंफर्म द ब्लड रिक्वायर्ड. नन ऑफ दिस भी नहीं होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. At the parent teacher meeting, the school coordinator will dash me on some of my career options. Will advise me, हाँ हो सकता है. Will speak होने से to होना था. Speak to me ये भी नहीं होगा. To missing है तो ये भी नहीं होगा. Say to me ये भी नहीं होगा. Listen to me ये भी नहीं होगा. देखो यहाँ पे preposition तीनों में to चाहिए होता है to make the sentence correct. ठीक है, वैसे भी नहीं होगा, सेंस भी नहीं बैठ रहा है, एडवाइस से ज्यादा सेंस बैठ रहा है. एट द पेरेंट टीचर मीटिंग द स्कूल कोऑर्डिनेटर विल एडवाइस मी. तो यहाँ पे एडवाइस ऑप्शन ए would have been the correct answer. Next, अच्छा, एरर करेक्शन, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है. चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स. चलो फाइंड आउट. अगर कुछ नहीं मिला तो नो एरर वुड बी द आंसर. देखते हैं क्या है. We should never look down to a person merely because he is poor. जल्दी से, I give it 30 seconds time. जल्दी से पढ़ो, इसका आंसर निकालो. देखो क्या हो सकता है आंसर. मिला? देखो, we should never क्या था यहाँ पे? look down to. look down on होता है, not look down to. Look down on is a phrase which means to regard someone with a feeling of superiority. किसी को संबोधित करना खुद को बहुत बड़ा समझ के. To regard someone with a feeling of superiority. जैसे this rich generally look down on the downtrodden in big cities. क्या बोला मैंने? The rich generally look down on the downtrodden इन बिग सिटीज. जैसे कि जनरली बहुत पैसे वाले लोग गरीबों को बड़े बड़े शहरों में उसको ध्यान ही नहीं देते, वो क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, उनका लाइफ कैसे चल रहा है, उसको अपने से मतलब है. राइट, ऑल्दो सब ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट. तो वी शुड नेवर लुक डाउन टू ए पर्सन नहीं होगा. क्या होगा? लुक डाउन ऑन ए पर्सन. बिकॉज लुक डाउन ऑन का मतलब टू रिगार्ड समवन विद द फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी. लिख देता हूं मैं, टू रिगार्ड someone with the feeling of superiority. The feeling of superiority. That means to look down on. तो यहाँ पे right answer क्या होता? To look down on. To गलत है. चलो. The last question for today. In this video, the Voyager took rest below the shade of a large banyan tree. क्या होगा? चलो अगेन 10 seconds दिया, जल्दी से सोचो आंसर. The Voyager took rest below the shade of a large banyan tree. मिला? That was easy. The Voyager took rest
not below the shade, that's under the shade. अंडर एंड बिलो का डिफरेंस क्या है? अंडर एंड बिलो दोनों का मतलब है नीचे, लेकिन कौन सा क्या नीचे? अंडर मीन्स ठीक नीचे, ठीक है? इट्स लाइक बिलो द शेड नहीं होगा, अंडर द शेड, शेड के ठीक नीचे, लाइक वो शेड है उसी में, ठीक है? तो लाइक द लेटर वाज केप्ट अंडर द पिलो, ठीक है? बट समथिंग दैट इज मेंट ठीक नीचे, बिलो मीन्स नीचे कहीं, नीचे है लेकिन हो सकता है कि ठीक नीचे नहीं है, नीचे है, नीचे कहीं है, लाइक बिलो द टेबल, नीचे टेबल के नीचे कहीं रखा है, लेकिन अंडर द टेबल मीन्स ठीक टेबल के नीचे. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अंडर एंड बिलो. द वॉयेजर टुक रेस्ट अंडर द शेड, ठीक नीचे शेड का, ऑन ए लार्ज banyan ट्री. ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? मजेदार था. तो this is the end of this second set of sure short questions. I hope you found, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, सबने आपको देखा, जिसने भी देखा, I hope कि आपको यहाँ से वैल्यूज मिला, आपको यहाँ से नया चीजें सीखने को मिला. If this is the case, so please hit the like button, subscribe if you have not already. यही कह सकता हूँ फिलहाल के लिए. तो थैंक यू सो मच. आई रियली विश कि आप लोग सबका ड्रीम्स जल्दी जल्दी पूरा हो, आप गवर्नमेंट जॉब जल्दी जल्दी से ले लो. ठीक है, चलो टेक केयर, बाय.